So now this video, as discussed in the previous one, I hope you have checked it. Please check the playlist which is titled as Target Prelims 2023 with the high yield topics and PYQs. With the help of that playlist, you will understand that in what sequence are we going, and I'll just be naming the chapters accordingly because we'll be taking the topics both from history and polity. Now, as I've discussed that, I'll be talking about the acts, the constitutional developments, which also forms a part of your history portion. Before we start understanding about the acts and see the kind of questions that have been figured, because there are so many acts to cover, and when you read you find it so easy because there is nothing complicated in that, but when you try to recall while solving the question, that becomes a problem because you will find that all of the acts, firstly most of the acts like the charter acts, sound similar, and because they were renewed every 20 years, so we'll find the years one after the other very similar, and then you will not be able to recall that which provision lied with which act. So that becomes a problem, and therefore we are trying to do it in a slightly different manner. First, doing the questions, trying to have the memory here, like, how and what, how much and what have we covered, checking it, and then seeing the detailed discussion. Now firstly we'll try to get into the background of how the things were happening. ठीक है, so structure of British government किस तरीके से change हो रहा था, पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा, एंड उसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है, यू विल बी सीइंग इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. Also, those of you who have not joined the Telegram channel, that is the place where I keep informing about all the things. तो वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. प्लीज़ फाइंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन द चैनल इन केस यू वांट द नोटिफिकेशन अपडेट्स. अच्छा, अब जब हम आगे बात करते हैं दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट द चेंजेस हैपेंड, फर्स्टली विल हैव टू गो बैक टू द बैकग्राउंड. सो आई क्विकली समराइज दैट फॉर यू. नो यू नो अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, 1757 में आपको पता है कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. अब यहाँ से क्या हुआ था, बंगाल रीजन पूरा जो प्रोविंस था वहाँ पर कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया. अब यहाँ से क्या होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ political power from the commercial power. ठीक है, earlier they were the commercial power just here for the trading purpose. Now they have got the political power also, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा बैटल जो है वो जीत लिया था. So they became the important territorial power in the case of India, and it was felt by the British government. I hope you remember the background that when this company had come to India, ठीक है, 1600 में इसको चार्टर मिला था Queen से. Charter is like a permission. So the Queen gave the permission to this company that you get the exclusive trading privilege. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग प्रिविलेज का क्या मतलब होता है कि आपको ट्रेड करने के लिए कहाँ पर, ईस्टर्न साइड में, दैट इंक्लूड्स लाइक कपल ऑफ एशियन रीजन, और हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप उस पर फोकस करेंगे. आपको एक्सक्लूसिव, ये वाली जो कंपनी बनी है जिसको ब्रिटिश या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है, उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिलेगी ईस्टर्न साइड में ट्रेड करने के लिए. ठीक है, अब तो पावर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था. बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ट्रेडिंग के अलावा पॉलिटिकल पावर्स भी आ गए बिकॉज दे वन दिस बैटल, देन द ब्रिटिश पार्लियामेंट थॉट कि भाई अब तो हमें भी इस कंपनी को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो सारा प्रॉफिट यहाँ से भी और यहाँ से भी सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में चला जाएगा. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग वाज कि एक नीड फील हुई. नीड किसको फील हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट को. किस चीज़ की, सो दैट वी कैन हैव अ कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी. और क्या होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का वेल्थ, देयर वाज इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ऑफकोर्स द पार्लियामेंट फेल्ट दैट वी शुड ऑल्सो हैव सम शेयर इन दिस वेल्थ. हमने ही उनको वो परमिशन ग्रांट की, वो वहाँ ट्रेड कर रहे हैं और इतना इतना मुनाफा कमा करके आ रहे हैं, तो हमारे पास फ़ायदा क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, उसके अलावा क्या था, दे कुड ऑल्सो सी दैट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर करप्शन वेरी मच प्रेवलेंट. ठीक है, भाई वहाँ जो उनके सर्वेंट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे, they were engaging in private trade, they were taking bribes and all other kind of corrupt practices were being prevalent there. So the parliament thought कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस गवर्नेंस हो रहा है, and we need to have charge over it. नहीं तो इंडियन अफेयर्स में ये लोग सारा मिस गवर्न करके ख़राब कर देंगे. Also there were certain British political thinkers. ठीक है, पार्लियामेंट में अपनी तरफ से तो जो सोचा जा रहा था वो तो जा ही रहा था, बट वहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर्स एंड जो इकोनॉमिस्ट्स थे,
उनका भी रोल है। आई जस्ट टेल यू हाउ। तो अगर हम फर्स्टली हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट दी एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दैट जो वहाँ के रिच ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें, हमारे नेशन का, इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लिश नेशन का स्टैंडर्ड गिरा के ना आ जाए। जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, अगर हमने रेगुलेट नहीं करा तो कहीं हमारी बेइज्जती वहाँ पर ना हो जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो दे अंडरस्टूड कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही इन्फ्लुएंस करने लगें, बिकॉज नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल, अब ये तो क्या थी, प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल वर ऑल्सो हैविंग सो मच ऑफ मनी इन हैंड, ऊपर से एक जगह की टेरिटरी भी इनके कंट्रोल में काफ़ी हद तक आ ही गई थी, ऑलमोस्ट आ ही गई थी। अब पॉइंट ये था कि दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि पार्लियामेंट में हमारे नाम पर कुछ सीट्स होनी चाहिए, हम खरीदेंगे, ठीक है। ये पैसा को वो वहाँ भी यूज़ कर रहे थे। तो इन पॉलिटिकल थिंकर्स का वो भी एक कंसर्न था कि कहीं सीट जो है वो उनको ना मिले। देन देयर वर सर्टेन इकोनॉमिस्ट्स, प्राइमरीली अगर हम बात करें, आपने नाम भी सुना होगा, एडम स्मिथ, ठीक है, इनका भी एक कंसर्न था, एंड सम अदर इकोनॉमिस्ट्स ऑल्सो, दैट वी एडवोकेट फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब कि वाई डू वी हैव द एक्सक्लूसिव मोनोपोली फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। सबको मिलना चाहिए मौका, हम तो लेजे फेयर अप्रोच में बिलीव करते हैं, ठीक है, विच इज़ फ्री ट्रेडिंग, जहाँ हम कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करेंगे और सबको मौका मिलना चाहिए। वाई दिस एक्सक्लूसिविटी, वाई दिस मोनोपोली गिवन टू वन कंपनी, है ना। ऊपर से क्या हो रहा था, अब चूँकि वहाँ जब बैटल्स ये लोग फाइट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो इंडिया में वो लोग बहुत सारे वॉर्स भी तो फाइट कर रहे थे। हमने तो पढ़ा ही है, एंग्लो माइसोर वॉर, मराठा के साथ, सिख्स के साथ, देन इन द नेबरिंग स्टेट इन्होंने करा, ठीक है, बहुत सारे वॉर्स हमने पढ़े। तो अब क्या है कि भाई उसमें भी तो पैसा जा रहा था। सो देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो हैपनिंग विच वॉज बीइंग शोन, क्योंकि हम बहुत सारे वॉर लड़े हैं तो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, देयर आर सर्टेन मिसमैनेजिंग थिंग्स हैपनिंग, बट एंड दे वर देन अप्लाइंग फॉर द लोन्स। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बोलते थे कि हमको लोन दो, हमारे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम व्हेन दीज ऑफिशियल्स वर रिटर्निंग टू ब्रिटेन, इनके पास खूब पैसा होता था। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखने लगा कि एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरी तरफ आपके पास पर्सनली तो बहुत पैसा है, ठीक है। जब आप लौट रहे हो तो वो चीज़ तो दिख रही है कि यू हैव सो मच ऑफ वेल्थ। तो ये सारी चीज़ें दिखने लगी कि ऑन वन हैंड देयर वाज पॉलिटिकल राइवलरी, है ना, कि सीट और ये सब ना मिल जाए, देन इकोनॉमिक कंसर्न्स वर देयर, देन इनकी ये जो मर्चेंट्स थे इनकी अपनी पर्सनल ग्रीड थी, and of course there was ambition of both the company to get hold of this very strongly, and ambition of now the British Parliament to have some control over it. So much of these things were happening, and then it was decided तो कि अब हमें थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 1772 में पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी ब्रिटेन में, ठीक है। एक कमेटी को अपॉइंट किया गया और उन्होंने बोला कि जो भी स्टेट अफेयर्स चल रहे हैं इंडिया में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको क्या करो, उसको करो इंक्वायर, ठीक है, ताकि हम आगे का डिसीजन ठीक से ले सकें। व्हेन दिस वाज डन, देन इट वाज फर्दर डिसाइडेड कि there is a need to solve certain problems. For example, what kind of a relationship would exist between the British government and EIC, है ना, इनके बीच के रिलेशन को हमें थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। देन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, जो इम्पोर्टेंट 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, वहाँ पर क्या होना था कि ब्रिटिश का प्रेजेंस अब होने लग गया था ना। ये सिंगल ही पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हर जगह स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखी थी। तो हाउ डू वी मैनेज इट। देन जो भी ऑफिशियल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के या जो भी इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने वहाँ उन्हीं के अगेंस्ट रखा हुआ है, उनको कैसे मैनेज करना है। सो देयर वर मैनी थिंग्स विच दे वर डिस्कसिंग अबाउट, ठीक है, कि वहाँ के सिचुएशन को देख करके जो उन्होंने आगे डिसाइड करने का सोचा। तो फिर ये समझ में आया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, वी विल लेट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैविंग अ ट्रेडिंग मोनोपोली, इसी को करने देते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वी आर टेलिंग देम दैट वी ऑल्सो हैव अ राइट ओवर योर ओन अफेयर्स। अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, भाई करते चलो, कि कोई कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, ठीक है, देयर वाज नो इशू एज सच। अच्छा, 1764 में बक्सर का बैटल हुआ था, आई होप यू रिमेंबर। आफ्टर दैट 1765 में दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड,
Now somebody who has not done these topics might feel ki why am I just doing things very quickly. Please understand this is a kind of a revision series wherein our focus is on the high yielding topics जो आपको नंबर दिला सकते हैं एंड हम PYQ से उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट अबाउट कि मैं आराम से कहानी सुना के 10 मिनट के टॉपिक को आधे घंटे में पढ़ाऊँ. ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन, सो यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज एनीवेज इवन इन द लेक्चर्स आई हैव टॉट अबाउट इट. बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है. सो इफ़ समबडी इज़ न्यू टू द टॉपिक्स और आपको नहीं कुछ बैकग्राउंड पता है और आप तब ये देख रहे हैं तो दिस विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल टू यू. यू नीड टू नो द स्टोरी अबाउट एवरीथिंग. उसके लिए आपको फाउंडेशन समझना पड़ेगा, वो आप उन लेक्चर से देख लीजिए. फिर आप यहाँ पर आइए और इसको प्रैक्टिस करिए और रिविजन करिए. ठीक है, चलिए. तो दीवानी राइट्स ग्रांट हुआ था और इस समय से लेके टिल 1772 तक एक सिस्टम चलाया गया था जिसको कहा गया था डुअल गवर्नमेंट. ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने. अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या था? इन दिस द होल आइडिया वॉज कि ये लोग क्या करेंगे ना कि इंडियंस के हाथ में कहने को, ठीक है, इंडियंस के हाथ में कहने को पावर देंगे बट इन रियलिटी दे विल नॉट हैव एनी पावर, ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज सर्टेन अफेयर्स. और सारा पावर जो होगा वो किसके हाथ में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में. ठीक है, एंड दे विल हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. So this was all the game of the power and the responsibility lying with the Indian people and the British East India Company. ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसे करके चला 1765 से लेके 1772 तक में. अब जब 1772 में यहाँ से, ठीक है, आफ्टर दिस कमिटी का डिसीजन एंड ये सब डिसाइड हुआ that we need to have a control over the East India Company, so things started to change. अच्छा, meanwhile also they have tried to interfere or intervene if I say so. ऐसा नहीं है कि इसके पहले इन्होंने नहीं करने की कोशिश की थी. जैसे this dual government was also kind of intervention only, है ना, कि इसके बीच में आके हम बोल रहे हैं कि आपके हाथ में ये कहने को पावर है बट इन रियलिटी इट्स ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऑफिशियली फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज किया गया दैट वाज इन 1773. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि वी विल हैव, वी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, आप अभी कुछ भी बोल सकते हैं, विल हैव द कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया. तो यहाँ पे जो एक्ट पास किया गया उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट. Now, do you get the idea why it is named as regulating? Because the idea was to regulate the affairs or the activities of the East India Company now, जो अब तक नहीं हो रही थी. ठीक है, अब इसके अंदर में there were certain provisions definitely कि ये होना चाहिए, बट वो क्या थे वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. We'll get back to this slide in some time. Now our focus would be, I will be giving you certain questions asked in the couple of papers. पहले आप वो देखो कि आपको याद है कि नहीं कुछ भी इसके बारे में, तब हम सप्लीमेंट करेंगे उसको पॉइंटर्स के साथ. ठीक है. Also please note that since I have borrowed the questions from multiple examinations, I will not be able to mention every time that which question has been taken from which examination. I'll just be giving you idea. ठीक है, ऐसे ऐसे करके questions आते हैं क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे यूपी के भी एग्जाम में, बिहार के भी, झारखंड के भी, छत्तीसगढ़ के भी, एमपी के भी, जितने भी हमें मतलब इधर के क्वेश्चंस मिले हैं विच आई कुड गेट होल्ड ऑन, तो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं. ना इट्स नॉट पॉसिबल कि हर स्टेट का फिर हर कैटेगरी का एग्जाम में मेंशन करते चलूँ, डजंट मेक सेंस. आई गिव यू द टाइप्स, बट जहाँ पे क्वेश्चन CSE का होगा, UPSC CSE का होगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का होगा, वहाँ पर आई विल जस्ट कीप मेंशनिंग. ठीक है, कि दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द PYQ. रेस्ट आई विल जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस, बट दीज आर द PYQs ओनली. आई होप यू गेट माई पॉइंट. तो एक क्वेश्चन जो टाइप का पूछा जाता है वो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में हुआ था. वो कौन से एक्ट के प्रोविजन से हुआ था? नाउ सिंस आई एम गिविंग यू ऑलरेडी कि हम इसी पर बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको जवाब समझ में आ जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका एक प्रोविजन, अच्छा ये कोई सीरियल ऑर्डर में आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज डिफरेंट बुक्स विल गिव यू डिफरेंट सीरियल ऑर्डर. आई एम जस्ट फॉलोइंग इट PYQs के हिसाब से. ठीक है, तो एक चीज़ जो यहाँ पर इसके प्रोविजंस में बोली गई कि एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा कैलकाटा में. तो इफ़ दे आस्क यू द क्वेश्चन दैट इट वाज डन बाय विच रेगुलेटिंग एक्ट, और लेट्स से विच एक्ट, नॉट रेगुलेटिंग एक्ट दे विल नेम, दे विल जस्ट राइट द एक्ट.
What they can do is to give you the options like Regulating Act, PITS India Act, and then Charter Act, Government of India Act, whatever. ठीक है, और alongside of course the year they can give you, or the other kind of options could be only to give you the year. ठीक है, कि 1773 है, 1784 है, 1793 है, 1813 है, 33 है, 53 है, जो भी है, कोई भी एक्ट देके फिर आगे 1909 है, वॉट एवर दे आस्क यू. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा की विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाई दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773. बट एक कोर्ट आप बाद में पढ़ोगे, फेडरल कोर्ट. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे. तो प्लीज़ नोट व्हेन इट से सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा यू हैव टू रिमेंबर 1773, वेरी इनिशियल वन. और जब हम एंड में फेडरल कोर्ट पे आते हैं, जिसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट फिर बना, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो वाला होता है 1935 एक्ट का. Now when we'll do the 1935 एक्ट, वो तो हम बात करेंगे, बट जस्ट टू क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन फॉर यू. ठीक है, उस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू विल रिमेंबर. अच्छा, अदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एक्टिविटी ओनली, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बोल सकते हैं कि हु वॉज द फर्स्ट CJI. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 1 CJ मतलब चीफ जस्टिस, ठीक है, एंड 3 judges were there, and it got established by 1773 act, but the supreme court was established in the year 1774, है ना. एक्ट के अगले साल में उसको कर दिया गया. तो एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी. पर अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर आपको जो नाम याद रखना है वो होगा सर एलिजा इम्पी. ये क्वेश्चंस में भी आया हुआ है, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आया हुआ है, और डायरेक्टली चूज़ करने के लिए भी आया हुआ है. सो ये आपको याद रखना है नाम. ओके, देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. Another very simple and direct question they can ask you, that the regulating act was passed in which year. So now let's say they give you the options like only the year 1773, 93, 1784, 1813, or whatever year they give you. तो अगर रेगुलेटिंग एक्ट है तो यू हैव टू रिमेंबर कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 1773, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए यहीं से चीज़ें हुई थी. फिर बाद में जो होने लगा वो होने लगा परमिशन, चार्टर एक्ट, जो हम बाद में समझेंगे. ठीक है, तो अभी आपको याद इसको ही रखना है. सो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू कि रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर क्या था. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किस एक्ट के थ्रू देयर वाज द प्रोविजन ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था और इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा. So this is another thing that you will remember. ठीक है, and who was then next they can ask you who was the first governor general of Bengal. So you will remember the name Lord Warren Hastings. I hope you are making sense of these things that we are doing कि किस किस तरह पैटर्न पे यहाँ से सवाल आ सकते हैं. तो एक तो ये वाला हो गया. अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है जो पूछा जा सकता है वो ये बोल सकते हैं कि एट टाइम्स, जैसे एक बार छत्तीसगढ़ के 2014 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ था कि इन्होंने जैसे 4-5 एक्ट आपको दे दिया और उसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं था. सो दे सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता स्टार्टेड इन इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट. तो एट टाइम्स आपको कन्फ्यूजन लगता है कि नहीं, इतने सारे एक्ट दिए हैं तो कोई ना कोई तो होगा ही, बट द आंसर वॉज नन. तो वो भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. ये मैंने आपको बता ही दिया कि जज का नाम अगर पूछते हैं चीफ जस्टिस का. अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई. यहाँ पे बोला गया कि जो गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ लोग थे डायरेक्टर्स जिनको बोलते थे, उनकी ग्रुपिंग. ठीक है, कि अब इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करेगा. और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सामने रखेंगे, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, वट एवर डिटेल्स आर कमिंग फ्रॉम इंडिया अबाउट हाउ द कंपनी इज़ डूइंग इट्स अफेयर इन इंडिया, दे विल हैव टू सबमिट इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक और चीज़ बोली गई दैट दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ विल हैव द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी.
ठीक है, 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी ना, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो बंगाल को सुप्रीमेसी दे दिया गया और बोला गया कि बॉम्बे मद्रास के ऊपर इनकी सुप्रीमेसी रहेगी। बट थिंग्स वर नॉट वेरी मच क्लैरिफाइड, ठीक है, कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे। इट वाज जस्ट सेट कि ठीक है सुप्रीमेसी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। वो क्लैरिटी आगे के एक्ट में आई, हम बाद में देखेंगे। और दिस गवर्नर जनरल जो हैं उनको रूल्स बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, सब के लिए पावर भी मिले, ठीक है। कोर्ट के बारे में हमने देख ही लिया। तो फर्स्ट टाइम अगर इस एक्ट का इम्पोर्टेंस हमें समझना है तो ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी वर गॉट सेग्रीगेटेड, कि पॉलिटिकली क्या काम करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में क्या काम करना है, क्योंकि अब हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर दी थी यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बोला गया था कि नाउ दिस गवर्नर जनरल वुड बी असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि 4 मेंबर की होगी। तो अगर आप एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रहे हो जिसमें 4 लोग होंगे, विच मीन्स आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे फोकस कर ही रहे हो, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बात भी बोली गई। और एक चीज़ और कहा गया, क्योंकि करप्शन एंड ऑल ऑफ दैट वर द कंसर्न, ये सब हमने बात करी थी यहाँ पे, वेयर डिड इट गो, दिस वन, ठीक है, करप्शन एंड ऑल। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो एफर्ट्स डालने की बात की गई, वो कहा गया कि कोई भी EIC का जो सर्वेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट है, विल नॉट इंडल्ज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेड, या फिर नेटिव से वो लोग ब्राइब, इंडियन नेटिव से वो लोग कोई घूस ब्राइब नहीं लेंगे। सो दीज वर सम, सी देयर विल बी मेरी प्रोविजंस विच यू विल सी इन डिफरेंट बुक्स। हमें काम का करना है, एंड दीज प्रोविजंस आई हैव combined from both your Spectrum and Lakshmikant, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू डेफिनेटली गिव इट अ सेल्फ रीड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इज़ विथ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड सेकेंडली कि एक रिविजन के तौर पे आपके सामने सारे पॉइंटर्स मैंने लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब बात है कि अगर यहीं पे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती तो वाई वुड देयर वुड बी सो मेनी एक्ट्स। एक बेसिक चीज़ आपको एक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, 1773 से लेके 1858 तक जो था वो EIC के हाथ में पावर थी, और इसके बीच में बहुत सारे एक्ट्स आए, हम देखेंगे एक करके। और 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो सारा चेंज हो गया, क्योंकि अब पावर आ गया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। फिर वहाँ से भी बहुत सारे एक्ट्स आए, जो कि एंड में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे हमें आज़ादी मिली 1947, ठीक है। तो अब बात है कि इसके इतने यहाँ भी आए, फिर इतने यहाँ भी आए, तो अगर सारी कहानी इसी से सॉल्व हो गई होती तो ये आगे आने ही नहीं होते। Therefore, it is very, very much obvious that this act had certain problems, or let's say shortcomings or loopholes, ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि even though the administrative power were now lying with the ईस्ट इंडिया कंपनी, बट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, देयर वाज नो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सुपरवाइज करने की कोशिश कर रही थी, रेगुलेट करने की भी कोशिश कर रही थी, दैट वाज नॉट वेरी क्लियरली डन, देयर वाज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देन काउंसिल में भी हमेशा इश्यूज़ रहते थे, डिसयूनिटीज और डेडलॉक्स हो जाते थे, गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में हारमनी नहीं थी, तो वो अपने प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास के ऊपर इनका कंट्रोल या सुपरविजन की बात की गई और इनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया, सो इवन इफ इट वाज मेंशन्ड बट देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन कि कितना सबॉर्डिनेट, कैसे करके सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है, उस पर क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर क्या होने लगा कि गवर्नर जनरल जो है वो एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी वोट की बात थी, अगर काउंसिल नहीं मान रही है तो गवर्नर जनरल ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। एट टाइम्स कास्टिंग वोट की भी बात हुई थी, लेकिन बहुत ही मतलब रेयर केसेस में, मोस्टली इश्यूज़ हो जाते थे। एंड देन जब हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, इवन दो इट वाज एस्टैब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट का भी कैसे क्या जुरिस्डिक्शन रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में भी हमेशा क्लैशेस होते थे, जो कि आज भी होते हैं, है ना। तो अब ये सारे इश्यूज़ थे, दैट इज़ वाई वी नीडेड सर्टेन एक्ट्स टू ओवरकम दैम, जो कि हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ बिकॉज दिस लेक्चर ऑल्सो इंक्लूडेड द बैकग्राउंड टू द स्टोरी एंड देन द एक्ट, सो ऑफकोर्स इट टुक थोड़ा सा टाइम, बट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस एंड वन एक्ट एट अ टाइम, so it will not be very lengthy. So I hope you'll be revising it properly. I'll see you guys in the next video then. Bye bye, take care.